Dear students, good morning. As in the previous video, we have clarified about the East India Company, then how East India Company established in 1600s in Indian subcontinent. As you everyone know that the main motto of that company was to buy the things, to buy the materials from the Indian subcontinent at the cheapest price and sell it in the Europe as the dearest price. That was the main motto of that company, and how they became successful in our. And yesterday I have told you that why they have become so powerful and how their business were established in our Indian subcontinent so fast because there was no any competition, there was no any competitive market in India for the East India Company. So freely they were doing business from the Indian subcontinent, but that is happened a long time. क्या ये लंबे समय तक चलता रहा? और some others companies has very interesting, some other company was very interested to do business with the Indian subcontinent. Okay, now let's start the second paragraph of the heading East India Company comes east. देखिए that the second paragraph is the problem was that all the companies were interested in buying the same things. The main problem in the Europe, in the England, that every company, why in Europe? Because there was no any company in India. So in England each and every company was very interested. They were looking for the business with the Indian subcontinent. Why? Because the materials is in the cheapest price in India. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. The super quality of the silk material, cotton material, which was established in the Indian subcontinent, that was very good and that was very famous in the Europe. So the European wants to buy it in the cheapest price, and they look these things, this fabric very relative. Paper, cloves, cardamom and the cinnamons too were in the great demand. If we will talk about the spices, that these spices such as the pepper, cardamom or black pepper or cinnamons, clove, that was very famous in the England. Why? Because the climate of the England is very cold and these all spices, the natural property is hot. इसका जो natural property है वो क्या है? गर्म है. So the European wants these spices in our daily life. Competition amongst the European companies in inevitable pushes up the price at which these goods could be purchased. यूरोपियन कंपनी में अब उस समय द कंपटीशन इंक्रीज हो रहा था. दैट वाज द रीज़न द purchase rate of these goods is becoming day by day higher. Day by day it is becoming higher, and this reduce the profit that could be earned, and by this increasing the money, the profit was less than the before for the East India Company. The only was the trading companies could flourish was by eliminating rival competition. And in this way, when the things is becoming very dearest, the things is becoming very costly, the competition is going very hard day by day in the East India Company, in the other European company.
The urge to secure market therefore led to fierce battle between the trading companies. Though the 17th and the 18th century they regularly sank each other's ships, and the result was whenever other ships came by the Malabar coast in India, the each and every competitive ships sink the other's boat in the oceans. कंपटीशन ये था कि जिस समय मालाबार कोस्ट से या फिर किसी भी तटीय कोस्ट से जब भारतवर्ष में कोई भी अदर कंपनी व्यापार करने आती थी तो वो सब कंपनी मिल करके एक दूसरे के नाव को डुबाते रहते थे। देखिए पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में व्यापार कर रही थी तो उस समय कोई ऐसा बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था कि जो भारतवर्ष से व्यापार करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे जब अदर यूरोपियन कंपनी को पता चला कि भारतवर्ष में ऐसे खनिज पदार्थ देखने को मिल रहे हैं तो उनके अंदर होड़ आ गई कि हम भी भारतवर्ष से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, जिसमें पुर्तगाली यूरोपियन ये सभी हमारे भारतवर्ष में आकर के व्यापार करना चाहते थे और वे गोवा से अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली इसी खोज में, जो पुर्तगाली हुआ करते थे वो इसी खोज में वास्को द गामा जैसे और भी बहुत ऐसे पुर्तगाली थे जो हमारे भारतवर्ष में इसी खोज में आए थे। समस्या यह थी कि सभी कंपनियां एक दूसरे के चीज़ों को एक दूसरे से कंपटीशन के मामले में बहुत होड़ उनके अंदर मचा हुआ था और इसमें मसालों का जो व्यापार वो कर रहे थे, जैसे लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इन सब का व्यापार यूरोप में इनका ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपियन कंपनियां जो होती थी इनके बीच में ऐसे बढ़ती स्पर्धा को देखते हुए जो हमारे केरल के रास्ते से होते हुए बंदरगाहों से होकर के जो भी कंपनियों का नाव आया करता था तो ये सारी कंपनियां एक दूसरे से इतनी ज़्यादा ये कंपटीशन की भावना रखती थी कि ये एक दूसरे के नाव को ही पानी में डुबा दिया करती थी कि ना नाव रहेगा ना इन लोगों से क्या करेगा, ना ये लोग व्यापार कर पाएंगे। तो इस तरह से 17वीं और 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो जब भी इनको मौका मिलता था कि एक दूसरे की कंपनी की जहाज़ों को डुबा दिया करते थे और रास्ते में रुकावट खड़ी कर या फिर किसी न किसी प्रकार की रास्ते में रुकावट ये खड़ी कर दिया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। And prevent rival ships from moving with the supplies of the goods trade was carrying on, which arms and trading posts were protected through the fortification। और इस तरह से जो इनके अंदर एक बढ़ते हुए इस होड़ को देखते हुए, ठीक है, जो व्यापारी जो हथियारों की मदद से भी चल रहा था, कोई किसी को मारता था कि कोई किसी के नाव को डुबाता था, तो ये जो व्यापार था वो हथियारों के माध्यम से भी चल रहा था। और व्यापारिक जो चौकियाँ हुआ करती थी वहाँ पर, जैसे अब ये क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब ये सोच रही थी मैं क्या करूँ कि जो रास्ता है ना, जिस रास्ते से ये लोग व्यापार करने आ रहे हैं, मैं वहीं पर अपना किला बनवा लूँ। ठीक है, इसने क्या कर दिया, अपना वहाँ पे फोर्टिफिकेशन मतलब वहाँ पे अपना किला बनवा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो उसी रास्ते पर क्या कर दिया, बहुत बड़ा सा किला बनवा दिया जिससे कि दूसरी कंपनियाँ भारतवर्ष में एंट्री कर ही ना सके, बस ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करे, व्यापार करे। द इफोर्ट ऑफ द 45 settlements and the carry of the profitable trade also led to intense conflict with the local rulers. The companies therefore found it difficult to separate trade from the politics. Let us see how this happened. अपनी फोर्टिफिकेशन को या फिर अपने बस्तियों को या फिर अपने किलेबंदी करके अब व्यापार का मुनाफा करने की इन कंपनियों की जो कोशिश थी वो स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा ये जगह है, आप दूसरी जगह से आकर के हमारे यहाँ घर बनवाने लगेंगे तो हमको बुरा लगेगा ही। तो इसी तरह से हमारे यहाँ के जो उस समय राजा महाराजा या फिर जो नवाब हुआ करते थे, जो भी स्थानीय जमींदार हुआ करते, तो इन सब के लिए अब ये क्या होने लगा, थोड़ा इनके लिए ये तो बस यही चाहते थे यहाँ के लोग कि ये आए हमसे व्यापार करें फिर यहाँ से चलते बने, लेकिन अब ये क्या करने लगे, धीरे धीरे यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होने लगे। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को अच्छी नहीं लगी। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। क्योंकि अगर वो सिर्फ व्यापार कर रहे थे तो जो अदर व्यापारी थे उनसे उनका टकराव हो रहा था।
और अगर अगर वो हमारे यहाँ राजनीति करने लगे तो राजनीति ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र पर पूरी तरह से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो आए तो थे अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार करने, लेकिन यहाँ पर उनको ऐसी होड़ मची, उनको इतना प्रॉफिट हुआ हमारे भारतवर्ष से, और यहाँ के लोगों से जब उनको धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, यहाँ के लोगों को वो चीज़ें बुरी लगने लगी, तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम इन लोगों से व्यापार तो करेंगे ही, लेकिन अब ऐसा व्यापार करेंगे जिससे कि इन लोगों से मैं फ़ायदा भी लूँ, इन लोग का नुकसान भी करवाऊँ और इन लोग को पता भी ना चले। तो इस तरह से जो कंपनी थी, आइए हम देखते हैं कि कैसे ये जो व्यापारिक कंपनी थी वो राजनीतिक समूह या फिर राजनीति कैसे हमारे भारतवर्ष में करने लगी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल इसके आगे हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, बाय बच्चों। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन व्यापार, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष से व्यापार करने लगी, बंगाल से कैसे उसने अपना व्यापार करना शुरू किया, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।